स्क्रीन पे एक वीडियो देख रहे हैं जिस वीडियो में आपको देखने को मिल रहा है सर्जियो गोर इनके भारत आने की तैयारी हो रही है। और सबसे बड़ी बात यह ना, व्हाइट हाउस वैसे तो दुनिया भर में अपने राजदूत भेजता है, लेकिन कभी इतने बड़े कार्यक्रम की तरह नहीं दिखलाता है जिस तरीके से हर क्षण का वीडियो रिलीज किया गया व्हाइट हाउस के द्वारा। अब इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को लेकर बहुत सारी बातें कही, लेकिन एक बात कहा उन्होंने कि भारतीय लोग अब मुझे प्यार करेंगे। अब क्या है मामला, जानेंगे क्या हो रहा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर की इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पर एक सेरेमनी देख रहे हैं आप। दरअसल ये सर्जियो गोर, जिसे नामित किया गया है भारत सेंट्रल एशिया के लिए राजदूत के तौर पर, वो भारत आने वाले हैं और उनका शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है। इस शपथ ग्रहण समारोह को बड़ा ही भव्य बनाया गया है क्योंकि यहाँ जो लोग मौजूद हैं उनमें बहुत सारे लोग हैं। जेडी वेंस हैं, एरिका किर्क हैं, जो आजकल बहुत ज्यादा चर्चा में रही हैं। एरिका किर्क अब आजकल डोनाल्ड ट्रंप के आसपास ज्यादा दिखने लगी हैं। ऐसा लगता है कि अब ये खास पोजीशन लेने जाएंगी। वहीं दूसरी तरफ सर्जियो गोर को शपथ दिलाया गया कि वो अमेरिका के भले के लिए काम करेंगे। थोड़ा इस वीडियो को सुनिए। Please repeat after me. I, Sergio Gore, do solemnly swear that I will support and defend the Constitution of the United States against all enemies, foreign and domestic, that I will bear true faith and allegiance to the same, that I take this obligation freely without any mental reservation or purpose of evasion, and that I will well and faithfully discharge the duties of the office on which I am about to enter. So help you God. Congratulations, Mr. यहाँ पर मार्को रूबियो ने एक मजाक भी किया और कहा कि यहाँ 1.6 बिलियन लोग हैं। अब आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी जिम्मेदारी सर्जियो गोर के ऊपर दी जा रही है। अब इसी समारोह के दौरान डोनाल्ड ट्रंप से सवाल किया गया भारत को लेकर बोलने के लिए, तो अब क्या बोल रहे हैं आप देखिए। बड़ा कुछ बदल गया है, डोनाल्ड ट्रंप का तरीका बदल गया है। इन्होंने अब क्या कहा है, He even published my book, which went to #1. I was very happy because if it didn't, he wouldn't be elected. But now I'm trusting Sergio to help strengthen one of our country's most important international relationships, and that's the strategic partnership with the Republic of India. It's a big deal. India is home to one of the world's oldest civilization, the largest country in the world, actually, and it's got over 1.5 billion people. And we have a fantastic relationship with the Prime Minister, Modi, and Sergio has only enhanced that because he's become already friendly with the Prime Minister, knowing that Sergio is going to be the ambassador they would call constantly to say, let's get to know this man, and they like what they see. So I know you're going to have a great success over this. It's a very important relationship. But it's also the fastest growing middle class, and it's an important economic and strategic security partner in the Indo-Pacific region. It's an amazing country, actually. 1.5 billion people. China has 1.4 billion. Those are two big countries. As ambassador, Sergio will work to fortify our country's bond, promote investments in key U.S. industries and technologies, increase American energy exports, and expand our security cooperation. And you know, we're making a deal with India, a much different deal than we had in the past. So right now they don't love me, but they'll love us again. We're getting a fair deal, just a fair trade deal. We had pretty unfair trade deals. They're very good negotiators, Sergio, so you have to take a look. इन्होंने कहा है कि अमेरिका अब भारत पर लगाए गए 50% टैरिफ को घटाने जा रहा है। व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बातचीत के दौरान ट्रंप ने कहा कि भारत पर फिलहाल बहुत ऊंचे टैरिफ इसलिए लगाए गए थे क्योंकि वो रूस से तेल खरीद रहा था, लेकिन अब उन्होंने रूस से तेल की खरीद काफी हद तक कम कर दी है, इसलिए हम टैरिफ नीचे लाने जा रहे हैं। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है और अमेरिका के लिए इंडो पैसिफिक क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार। इसके अलावा ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना करते हुए कहा कि हमारे बीच शानदार संबंध है, हम भारत के साथ एक अच्छा
और न्याय संगत व्यापार समझौता करने के करीब है। यानी भारत से संबंध को काफी ज्यादा खराब करने के बाद अब आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप वापसी ले रहे हैं, इंडो पैसिफिक में भारत के महत्व को समझ रहे हैं। इस दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी बाइडेन पर भी हमला बोला, जो उनसे पहले राष्ट्रपति थे। उन्होंने कहा जो बाइडेन को भारत के बारे में कुछ नहीं पता था, उन्हें भारत की रणनीतिक अहमियत का अंदाजा नहीं था। ट्रंप ने दावा किया कि उनकी सरकार भारत के साथ ऐसे संबंध बनाने जा रही है जो पहले कभी नहीं रहे। उन्होंने आगे कहा कि हम भारत के साथ एक नया और अलग तरह का समझौता कर रहे हैं। फिलहाल उन्हें मुझसे बहुत प्यार नहीं है, लेकिन जल्द ही वो हमें फिर से पसंद करेंगे क्योंकि हम एक निष्पक्ष सौदा करने जा रहे हैं। वैसे आपको बता दूं, डोनाल्ड ट्रंप के इस वीडियो से एक चीज तो समझ में आ रहा है कि भारतीय जनता का मूड जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के प्रति खराब हुआ है, ये चीज और ये खबर राष्ट्रपति ट्रंप तक पहुंची है। और अब राष्ट्रपति ट्रंप ये कह रहे हैं कि एक ऐसा समझौता होगा जो हर किसी के लिए अच्छा समझौता होने वाला है। वैसे अब ये कब तक करेंगे देखना होगा। पर आपको बता दूं, डोनाल्ड ट्रंप का कहना और करना, इनमें अंतर है। अगर इस पूरे इवेंट को भी ध्यान से देखें, डोनाल्ड ट्रंप ने ये सारी बातें कही है। अभी ट्रेड एग्रीमेंट फाइनल हुआ नहीं है, और जब तक ये ट्रेड एग्रीमेंट फाइनल नहीं हो जाता है तब तक कुछ भी कहना आसान नहीं होने वाला है। और सबसे बड़ी चीज ये, आप देखिए, हंगरी के राष्ट्राध्यक्ष विक्टर ऑर्बन ये आते हैं, डोनाल्ड ट्रंप से मिलते हैं और इन्हें 1 साल की रूसी तेल के लिए खरीद के लिए छूट मिल जाती है। लेकिन भारत को ये अपना दोस्त कहते हैं, भारत के लिए बहुत अच्छे अच्छे शब्द ये इस्तेमाल करते हैं, लेकिन भारत को छूट नहीं मिलती है, भारत को पनिशमेंट मिलता है। अब जहाँ तक व्यापार वार्ता की बात है, तो व्यापार वार्ता चल रही है और इसका फल कब तक आएगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन हाँ, ये बहुत ज्यादा नहीं चलने वाला है। कहीं न कहीं आकर अमेरिका को झुकना होगा, और इसके पीछे कारण ये है कि ट्रंप बहुत दिनों तक महंगाई अपने देश के अंदर नहीं खींच सकते हैं, और न ही इंडो पैसिफिक को। बार बार ऐसा लग रहा है जितना ज्यादा कड़ाई डोनाल्ड ट्रंप इस्तेमाल कर रहे हैं, भारत उतना ही ज्यादा क्लोज होता जा रहा है चाइना और रूस, और ये चीज अमेरिका के लिए सही नहीं है, ये सभी जानते हैं। अब ये जो बंदा आप देख रहे हैं ना, ये सर्जियो गोर, ये भारत आ रहा है और इसके ऊपर बहुत ज्यादा निर्भर करेगा, क्योंकि ये बंदा सिर्फ भारत का राजदूत नहीं है, ये सेंट्रल एशिया के राजदूत के तौर पर काम करेगा। और अभी भारत पाकिस्तान के बीच कैसे संबंध हैं ये सभी को पता है। अभी दिल्ली में जिस तरीके से ब्लास्ट हुआ है, इस ब्लास्ट के बाद कहा जा रहा है आगे क्या होगा ये कहना मुश्किल है। अगर इस ब्लास्ट में किसी भी तरीके से पाकिस्तान का हाथ निकलता है, तो फिर भारत ने पहले ही कहा है कि अगर कोई आतंकी हमला होता है तो ये एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान इसके निशाने पर आ सकता है। तो जो जियोपॉलिटिक्स है वो बहुत तेजी से बदलेगा। सर्जियो गोर का यहाँ आने के बाद क्या रिएक्शन होता है, वो सारी चीजें मायने करेंगी। वैसे डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो लोग हमें फिर से प्यार करेंगे। इससे एक चीज तो समझ में आ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप को समझ में आ चुका है कि भारतीय रुष्ट है, और भारत कितना इम्पोर्टेंट है इसको आप ऐसे देख सकते हैं कि यहाँ सर्जियो गोर को नामित करने के लिए इतना बड़ा समारोह रखा गया, सारे खास लोगों को बुलाया गया। और सबसे बड़ी चीज है किर्क, इसके वीडियो को अगर आप देखें तो ये कहती है कि चार्ली हमेशा आपके साथ रहेगा। अब भारत में या सेंट्रल एशिया में ऐसा कौन सा तीर मारने जा रहे हैं सर्जियो गोर जिसके लिए इतना ज्यादा दुआओं की जरूरत है। खैर, अब ये जब आएंगे तो बहुत सारी चीजें निकलकर सामने आएंगी। वैसे डोनाल्ड ट्रंप का भारत को लेकर अच्छी अच्छी बातें कहना और करना, इन दोनों में बड़ा अंतर है। पर हाँ, अगर ये चाहते हैं कि एक बार फिर से भारतीय इन्हें पसंद करने लगे, तो इसकी वजह कहीं ना कहीं पाकिस्तान होगा। भविष्य में पाकिस्तान के प्रति अमेरिका का क्या रवैया रहता है ये बहुत ज्यादा मायने करेगा। आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।